Hello students, back to the Tantresar physics classes. Presently I am delivering lectures on rotational dynamics, and in yesterday's lecture I completed translational angular momentum with applications, and the lecture is already available on the YouTube. Today my lecture is on rotational angular moment. Rotational angular moment. And I will also explain rotational kinetic energy. Suppose a rigid body is rotating about some axis. Maybe that axis is through center of mass, maybe that axis is outside the body or inside the body, or it may be even passing through the center of mass, and the body rotates about that axis. Let me suppose it is a pure rotation about that. It is not translating about that axis. Although it may be translating about some other axis, but there may be a particular axis about it has pure rotational motion. And then this body will have rotational kinetic energy, and it will also have rotational angular moment. Yesterday, when the center of mass was moving about some point, then we defined translational angular momentum about some external point. So, what is the definition? Definition is the same as translational angular moment. But when the body is now rotating, it has a different formula. Otherwise, it is the same angular moment. Let me take the example. It's a rigid body, and it is the axis about which it rotates. It is a rigid body. It is an axis. It is an axis It is a rigid body, and it is an axis about it rotates with angular velocity omega. It rotates, and the angular velocity of this rotation is omega. Means it will complete a rotation in time period t, and omega is equal to 2 pi by t. Or when it rotates, any radius vector drawn from the axis will cut angle theta in time t, and the angular velocity will be that angle cut by the any radius vector drawn from the axis onto any point in time t. That is, omega will be angle cut in the given time per unit time, theta by t. Okay. Now, angular velocity is omega. I want to find its rotational angular momentum about this axis. And be careful, if I change the axis, the rotational angular momentum about different axes will be different. So, let me take a mass point here, and that mass point is how much away from the axis? Suppose r. Suppose r. And when this rigid body rotates, this particle inside, arbitrary particle, that will move in a circle. If a rigid body rotates, any particle inside the rigid body will move in a circle around the axis. All the particles, they move in circles. Some in bigger circles, some in smaller circles. Those which are far away from the axis will move in bigger circles. Those which are closer will move in little circles. Those which are on the axis, they will not move at all. They will not move because they are on the axis. Axis से दूर जो होगा वो axis के इर्द गिर्द घूमेगा. Have a look. जो यह particle होगा, तो it will move in a bigger circle. It will move in a bigger circle. अच्छा, अब इस particle का velocity, suppose that is v. Now tell me what is the angular momentum of this particle L. इस particle का. It is mv momentum into r. R is the radius, this distance from the axis, r. अब because velocity और r के दरमियान क्या angle है? 90.
क्योंकि जो सर्कल में घूमता है पार्टिकल का वेलोसिटी है टेंजेंशियल टू द सर्कल, और वो रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है, इसलिए एंगल ऑफ मोमेंटम इज mvr, मोमेंटम इनटू r, बिकॉज साइन 90 इज 1। थीटा भी है असल में, डिफिनेशन यू नो, r क्रॉस p, that is rp sin theta, that is mvr sin theta, but theta here is 90 because particle moves in a circle का जो velocity that is tangential, and the angle between the tangential velocity and the radius vector is 90, therefore ये mvr हो गया। तो लेकिन सब पार्टिकलों का मिलाकर समेशन ऑफ l इज इक्वल टू समेशन ऑफ mvr। ठीक, तो ये समेशन ऑफ l को l ही कर दो, कैपिटल l कर दो, या इसको प्राइम कर दो, इसको पूरा l कर दो, इट इज समेशन ऑफ m। ये जो v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कल, वो पता होना चाहिए आपको, दैट इज r ओमेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू ओमेगा, दैट you already know because I have repeated it many times in my lectures. So r, that is angular momentum is equal to sigma m r square omega, ये वाला, दैट इज l इज इक्वल टू, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए वो समेशन से बाहर आएगा, कांस्टेंट समेशन से भी बाहर आता है, और कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाता है, तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ठीक, ये समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर एज यू नो इट इज ओमेगा, इट इज सॉरी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इट इज ओमेगा इंटू आई, दैट इज l इक्वल टू आई ओमेगा। ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन, सॉरी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, l इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक, l इज इक्वल टू आई ओमेगा, मगर व्हाट इज l? दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, omega is the angular velocity, it is the angular velocity of a rigid body, and I is the moment of inertia about that axis। जो एक्सिस आपने लिया है उसी एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस इज द बेस फॉर्मूला। कोई अगर एक रिजिड बॉडी, अच्छा चलो मैंने एक स्फीयर लिया एग्जाम्पल के तौर पर, इसका ओमेगा है, सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है, किसी और एक्सिस से भी पास करता हो कोई टेंशन नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू सपोज 10 रेडियंस पर सेकेंड, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर, ये स्फीयर है सॉलिड वन, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, और m समझो 1 kg का है, और r भी समझो 1 मीटर का है, मतलब जस्ट मेक द कैलकुलेशन सिंपलर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है इस स्पिनिंग स्फीयर का। ये जो स्पिनिंग स्फीयर है, स्पिन कर रहा है सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के इर्द गिर्द, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? द आंसर इज l इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू आई इज 1/2 I is equal to 2/5 mr square omega, that is 2/5, m is 1 kg, r is 1 square radius, omega is 10, so it is 2/5 into 10, that is 4 kg meter square पर सेकेंड आंसर। तो ये फॉर्मूला सिंपली आप यूज कर सकते। अब दूसरी चीज ये है कि व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यू नो दैट इज 1/2 mv स्क्वायर। अगर ये रिजिड बॉडी है, इट रोटेट्स एंड अबाउट एन एक्सिस, व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी? दैट वी कॉल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, अगर इफ द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो गया, तो फिर भी इसका एनर्जी है, और वो एनर्जी कहलाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाउ मच इज दैट? ओके, लेट मी फाइंड दैट आल्सो। इट्स अ रिजिड बॉडी, ये ओमेगा से रोटेट करती है अबाउट दिस एक्सिस, तो ये मास पॉइंट ले लो, आर दूर,
If this moves, rotates about an axis, so this particle also moves in a circle. It has a speed of v. पता है इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या है? That is 1/2 mv square. ठीक, that is k is equal to 1/2 m. What is v? That is r omega. उसका स्क्वायर कर दो. अगर दूर पार्टिकल है that will have more speed. बिकॉज ओमेगा तो सेम है. अगर ओमेगा सेम है, आपने दूर ले लिया तो उस बड़े सर्कल में घूमेगा तो आर ओमेगा के हिसाब से उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो उसका उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा. लेकिन हमें देखना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस. तो के रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब समेशन कर दो सारे पार्टिकलों के लिए. तो समेशन का मतलब यह है कि टोटल रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है, बाहर आएगा, और बाकी में समेशन होगा 1/2 m आर स्क्वायर. नहीं, 2 भी बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा. ओके, अच्छा, तो के रोटेशनल किसके बराबर? दैट्स ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये यहां जो एम आर स्क्वायर है, समेशन एम आर स्क्वायर, दैट इज आई. ठीक, तो अब बताइए व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस? दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. ये है फॉर्मूला. अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट सम एक्सिस, तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. अब जरा देखो, जो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज 1/2 एम वी स्क्वायर. 1/2 यहाँ पर भी है, और जहाँ वहाँ m है वहाँ यहाँ I है. जहाँ वहाँ वेलोसिटी है v, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी. ये पूरा मतलब एनालॉगस है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूरा एक दूसरे के एनालॉगस है. लेकिन m के बदले यहाँ I, और v के बदले में यहाँ है ओमेगा. सो दैट मीन्स जो मास प्लेज अ रोल इन ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in rotational dynamics. If it is very difficult to move a body, its mass is very larger. If it is difficult to rotate a body about some axis, that means the moment of inertia of that body about that axis is higher. Okay? Now, how to find a relationship between third point, relation between रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल एंगुलर मोमेंट. इन दो के दरमियान मैं रिलेशन बनाना चाहता हूँ. आई वांट टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन द टू. इट विल फॉलो द सेम रिलेशन एज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. देयर यू नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m. ठीक, अब जरा देखो, हैव ए लुक. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. फिलहाल ठीक है, चलता है. Fine, okay. So K rotational is equal to 1/2I, नीचे लिखूंगा मैं. ठीक, तो वहां ये जो I है उसको स्क्वायर कर दूंगा और ओमेगा को भी स्क्वायर कर दूंगा. और यहां जरा देखो, इट इज L स्क्वायर. K rotational is equal to 1/2I, नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट सम एक्सिस, L स्क्वायर. आंसर. So you have a relation between rotational kinetic energy and angular momentum. It's 1/2I L square. ठीक, अच्छा. Now let me go to the fourth point. अगर मेरे पास ये डिस्क है और ये डिस्क क्या कर रहा है, डिस्क है, चलो मान लिया डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, और ये it rolls with angular velocity omega. Therefore, its center of mass also moves with velocity v. If a disk or a sphere or a ring or a cylinder, if they roll, तो रोलिंग का मतलब ये होता है कि द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, इसका वेलोसिटी 0 होता है.
और इसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दिस कंडीशन फॉर रोलिंग। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज 0 वेलोसिटी, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज 0 एक्सेलरेशन। एंड ऑल्सो अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0 वेलोसिटी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0 एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच इट रोल्स। और एक बात होती है, ये जो v है ये होता है r ओमेगा के बराबर। जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है वो r ओमेगा के बराबर होता है। ये हमने आपको पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ दिस डिस्क अबाउट सेंटर एंड अबाउट दिस a पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसके अबाउट भी निकालूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम, और अबाउट c भी निकालूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट a दिस डिस्क हैज 2 फॉर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा, एंड ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम बिकॉज द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अबाउट दिस पॉइंट o। इस पॉइंट a के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है और ये स्पिन भी कर रहा है, मतलब ये रोल भी कर रहा है ओमेगा से। तो 2 एंगुलर मोमेंटम आपके पास है। तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट a, ऐसे मैं करूंगा इज इक्वल टू, हाँ एक तो, हाँ तो बेसिकली डायरेक्शन क्या है एंगुलर मोमेंटम का इस ओमेगा की वजह से। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड वॉच वेयर द थंब गोज। ऐसे 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 आप अपने फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल करो, ऐसे कर्ल ऐसे, और देखो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इनवर्ड्स। तो इस आई ओमेगा पहले इनवर्ड्स। दूसरा ये आर इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम। ये मोमेंटम एम को मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम बन जाएगा। आर इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, देयरफॉर हमें ये मोमेंटम और ये आर मल्टीप्लाई करना है, प्लस पी आर मोमेंटम और आर। और अब देखना डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन है ये आर का जो टेल है वो ए पर है, आर ये जो है पोजीशन वेक्टर उसका टेल कहां पर है, ए पर, और हेड आगे। तो हेड को इसमें कर्ल करो ऐसे, वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा, आर क्रॉस पी। ये आर है, फ्रॉम टेल टू हेड आर है, और कर्ल फिंगर करो आप पी के ओर, तो द थंब विल गो इनसाइड। तो दोनों एंगुलर मोमेंटा अंदर की ओर है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। तो इट इज एल ए इज इक्वल टू आई ओमेगा, but I moment of inertia for the disk is about the center of mass 1/2 m r square omega plus p, that is mv r, ऐसे कुछ। so it is La equal to 1/2 m r square omega plus m, इस v का क्या करें, r omega r, it is m r square omega, it is 3/2 m r square omega. Answer, this is the angular momentum of this disk rolling in the forward direction about point A. देख लो, about point A. Now, what is about point C? What is the angular momentum about point C? Yes, about C मैं आपको बताना चाहूँगा। about C जो है, ये जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है वेलोसिटी की वजह से, उसका तो 0 होगा, बिकॉज द मोमेंटम पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ये जो मोमेंटम है ये इसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, इसलिए ये जो P है इट विल नॉट क्रिएट एंगुलर मोमेंटम एट C विद रेस्पेक्ट टू C बिकॉज द मोमेंटम पासेस थ्रू C। ये मैंने पहले भी आपको बताया, इफ मोमेंटम पासेस थ्रू ए पॉइंट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट बिकम 0। तो इसकी वजह से, इस P की वजह से अबाउट C एंगुलर मोमेंटम 0 है, प्लस वो आई ओमेगा कभी 0 बनता ही नहीं है, वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, वो हमेशा आई ओमेगा होता है। चाहे आप सेंटर के अबाउट निकालो एंगुलर मोमेंटम, चाहे और किसी पोजीशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, पहले आई ओमेगा ही लिखना चाहिए। ये जैसे इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, वो लिखना ही पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन का कोई और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो तो हो, लेकिन स्पिन पहले ही लिखना पड़ता है। इसलिए आई डोंट कंपेयर द टू एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर देयर इज अ
होल लॉट ऑफ डिफरेंस, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं कि जो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसी पॉइंट के अबाउट जीरो बन नहीं सकता है, किसी पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं बन सकता, लेकिन ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम को आप जीरो बना सकते हैं। वो कैसे? अगर बॉडी का मोशन है, आप मोशन के अबाउट ही उसी लाइन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो बन जाता है। सपोज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे mv, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, दिस पॉइंट 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 जीरो। जो इस मोमेंट के अलॉन्ग जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा जीरो होता है। अच्छा, तो ये हुआ LC इज इक्वल टू I, दैट इज 1/2 mr स्क्वायर, तो ओमेगा साथ में। फिफ्थ पॉइंट, अगर मेरे पास एक स्फीयर है, इट इज ए स्फीयर, इसका भी मैं यही एग्जांपल देना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करूंगा मैं यहां पर। ये जो स्फीयर है ये ऐसे रोटेट करती है, ऐसे उल्टा स्फीयर ऐसे उल्टा करता है, लेकिन मूव करता है आगे। इसका मतलब ये है कि ये रोल तो करेगा नहीं, क्योंकि रोलिंग में ये V और ये ओमेगा एक ही सीमित में होना चाहिए। बॉडी आगे जा रहा है और स्पिन ऐसे होना चाहिए क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, इसलिए दिस इज नॉट ए रोलिंग कंडीशन। अच्छा, अब जरा देखो, मुझे चाहे एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस A, ऑल्सो अबाउट दिस C, अबाउट A, एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, तो पहले मुझे बताइए what is angular momentum about it due to this motion of the body in the forward direction? That is momentum तो mv है इसका, that is mv momentum into this r, that is mvr। लेकिन डायरेक्शन क्या है? ये टेल है, r का टेल ये है, तो हेड आगे जाएगा, तो r क्रॉस p, that is this, वो है इनवर्ड्स, वो है इनवर्ड्स। ये mvr इनवर्ड्स है, उसको मैं क्रॉस कर दूंगा इनवर्ड्स। इनवर्ड्स है एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यू टू सेंटर ऑफ मास मोशन अबाउट द पॉइंट A। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस ओमेगा? इट विल आल्सो क्रिएट एंगुलर मोमेंटम, बट इट क्रिएट्स एंगुलर मोमेंटम लाइक दिस, आउटवर्ड्स, बिकॉज यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, वॉच वाइट द थंब गोज, थंब कम्स आउट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो डॉट है आउट। इसलिए ये दो एंगुलर मोमेंटा जो है वो ऐड नहीं होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक अंदर की ओर है और दूसरा बाहर की ओर है, एक इनवर्ड्स दूसरा जस्ट आउट। इसलिए आपको दो में से एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो आउट होता है उसको हमेशा पॉजिटिव ले लो जस्ट फॉर कन्वीनियंस, और इसको नेगेटिव ले लो। अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन मैं पर्सनली डॉट को पॉजिटिव लेता हूं, बिकॉज डॉट इज आउट ऑफ द बोर्ड, आई टेक इट पॉजिटिव। यू कैन डू रिवर्स ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो, बट इट इज बेटर फॉर यू टू फॉलो योर टीचर। डॉट, तो ये इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव कौन सा? आई ओमेगा। ठीक, और दूसरी बात यह है कि यहां पर यह नहीं लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R ओमेगा, नो, ये नहीं लिख सकते। ये तभी लिख सकते हैं आप जब बॉडी रोल करता हो। यहां रोलिंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये उल्टा स्पिन कर रहा है, इट इज स्पिनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर इज नो रोलिंग। ये रोलिंग के लिए कंडीशन है, यहां ये कंडीशन नहीं है, नंबर वन। नंबर सेकंड, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, ना इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, ना इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो लिया जा सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो ओनली व्हेन द बॉडी रोल्स। तो रोलिंग आपका एक्सपीरियंस है, द टायर्स रोल, दे रोल वेरी स्मूथ, रोलिंग इज वेरी स्मूथ। व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, skidding takes place. Skidding is when this point has a velocity, when it rubs with the ground. जब point of contact ground के साथ rub करेगा, slip करेगा, skid करेगा, तो उस वक्त point जो होता है ground के साथ जो टच में होता है उसका velocity भी होता है, उसका acceleration भी हो सकता है। रोलिंग इज वेरी स्मूथ, तो रोलिंग में जब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आ जाता है ग्राउंड के साथ वो रेस्ट में आ जाता है, तो इसीलिए रोलिंग इज क्वाइट स्मूथ, इट्स नॉट रबिंग। अच्छा, दिस इज वन पार्ट। लेकिन आई आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr स्क्वायर। ठीक, थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, सपोज वन मोर एग्जाम्पल, आई विल पिक अप ए स्पेस एग्जाम्पल। ओके, ये है स्पेस में डिस्क, इट मूव्स लाइक दिस विद वेलोसिटी v and it rotates with omega, and I want to find its angular momentum about this point d, about this point O. D is the distance from C to O. So what is the angular momentum about O? पहले ये एंगुलर मोमेंटम, ये वाला वेलोसिटी के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, दैट इज P इंटू दिस D, PD, पॉजिटिव के नेगेटिव। एक मिनट, ऐसे ये टेल है, रेडियस वेक्टर का ये टेल है, और ये हेड हुआ ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक, अगर दो में से कोई उल्टा निकला तो एक को पॉजिटिव देना है, दूसरे को नेगेटिव साइन देना है। फिलहाल तो ये अंदर की ओर है, दोनों को नेगेटिव ले लो तो अच्छी बात है। अगर दोनों अंदर की ओर है फिर किसी को साइन देने की जरूरत नहीं है। साइन का मसला तब आता है जब एक अंदर दूसरा बाहर, या एक का डायरेक्शन कुछ होता है, दूसरा का डायरेक्शन कुछ होता है। ठीक, अच्छा, नाउ सी हियर इंपॉर्टेंट थिंग। अब मुझे बताइए, ये अबाउट ओ है PD, पहले हुआ ये P और ये D डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मोमेंटम एक्सिस एंड द पॉइंट, ये 90 का एंगल बनाता है इस यहाँ से, एंड प्लस I ओमेगा, ये वाला I ओमेगा। वेलोसिटी और ओमेगा में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये स्पेस में मूव कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है और मोशन भी आगे की ओर है। इट्स ए स्पिनिंग बॉल, जो क्रिकेट बॉल होता है वो स्पिन भी करता है और आगे भी जा रहा है। उसके दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं, अबाउट द बैट्समैन या अबाउट द बॉलर, वो स्पिन भी कर रहा होता है और ट्रांसलेशन मोशन भी उसका है। तो ये है आंसर। अगर ये बॉल है, डिस्क ही समझो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/2 mr², और ये जो LO है दैट इज मोमेंटम इज mvd प्लस I ओमेगा, दैट इज 1/2 mr² ओमेगा। ठीक, अब आप कहेंगे अब ये V जो है ये R ओमेगा के बराबर है, शायद आप ये कहोगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तभी इक्वेशन वैलिड है जब रोलिंग हो, एंड रोलिंग इज ओनली पॉसिबल ऑन द ग्राउंड, नॉट इन स्पेस। रोलिंग स्पेस में नहीं होता है अनलेस कुछ ऐसा हो कि इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो। बना सकते हैं, स्पेस में भी बना सकते हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 एक तरीके से बना सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वी कैन डू इफ वी वांट टू। बट इन स्पेस रोलिंग ग्राउंड पर आ जाता है, बिकॉज इट इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन विच कॉजेज द रोलिंग। पहले अगर स्किड भी करेगा, कोई बॉल हो, कोई डिस्क हो, कोई स्फीयर हो, पहले अगर स्किड भी करता हो, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो स्किडिंग जो है फ्रिक्शनल फोर्स उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को 0 वेलोसिटी पर ले आता है, तो रोलिंग शुरू हो जाता है। स्पेस में रोलिंग का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अच्छा, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट C? अबाउट C ये जो मोमेंटम है, ये वाला मोमेंटम, ये तो C से पास कर रहा है, तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एंगुलर मोमेंटम when it passes through the point C. Therefore, about C, the angular moment is only I omega. I omega कभी मरेगा नहीं, वो कभी नलिफाई तो होगा नहीं, that is intrinsic. ठीक, 7th point. 7th point. अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, मैं बनाना चाहूंगा एक सिचुएशन, चलो ठीक है, एक रॉड लेता हूं मैं, ऐसे कुछ, ये यहाँ हिंज है इधर, इट कैन मूव अराउंड द हिंज, और इसको हमने खड़ा किया हुआ है इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मास m है और लेंथ l है, और ये थोड़ा सा इसको मूव किया या थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया तो ये फॉल हो जाता है, इट फॉल्स एंड इट गोज लाइक दिस, फॉल होकर के ऐसे हो जाता है। ऐसे हमें देखना है कि यहाँ पर जब ये आया, ग्राउंड पर गया, तो उस वक्त इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है।
व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक, अच्छा। सो और लगे हाथ में यहाँ पर वेलोसिटी भी निकालेंगे। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड लेट मी फाइंड वेलोसिटी वी ए, वेलोसिटी वी बी, ऑल्सो वेलोसिटी हियर वी ओ। ठीक, it falls like this. Okay, now what should I do to find angular velocity here? देखिए, when it was erect on the ground, what was its total energy? E equal to potential energy। अगर ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लिया जाए ग्राउंड को, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी था mg/L/2। ठीक, बिकॉज सेंटर ऑफ मास ये है ना, तो समझो सारा रॉड यहाँ पर है, तो mg/L/2, क्योंकि ये L/2 आधा है, ग्राउंड पर जीरो है, तो ग्राउंड से ऊपर जितना भी होगा उस हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा जीरो से ऊपर mg/L/2। अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है व्हेन इट इज इरेक्ट एट रेस्ट, जीरो। तो ये दो एनर्जीज, एक तो पोटेंशियल, दूसरा काइनेटिक। व्हेन इट फॉल्स इट रोटेट्स अबाउट दिस हिंज, so it has a pure rotation about this hinge. Be careful, it's a pure rotation is something and rotation is something different, and like the whole rod is rotating about a point. How can you say that the rod has a pure rotation about this hinge point O? How can you say that? Can you think for a moment that the rod has a pure rotation about point O? Why it does not have pure rotation about this point? Why not about this point? Why this about point O? हाँ, मैं बताता हूँ। जो रॉड के अंदर एक पॉइंट, रॉड के अंदर जो भी पॉइंट रेस्ट में हो, रॉड के अंदर जो भी पॉइंट रेस्ट में हो, एक ही जगह हो, the rod rotates about that point and it has a pure rotation about a point which is at rest. कभी कभी वो पॉइंट बॉडी के बाहर भी होता है, जो एक ही जगह होता है। बॉडी के बाहर भी एक पॉइंट हो सकता है जो रेस्ट में हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो if there is a point within the body or outside the body which is at rest, but the body rotates, moves, then the body has a pure rotation about that point which is at rest. So this body has a pure rotation about this point. यानी कि मैं लिख सकता हूं body has only rotational kinetic energy about this point. Body has both energies, kinetic, rotational kinetic energy and translational kinetic energy about some other point. किसी और पॉइंट के अबाउट इसके दो एनर्जीज हो सकते हैं, क्योंकि किसी और पॉइंट के अबाउट इसका प्योर रोटेशन नहीं होगा। इसका प्योर रोटेशन उसी पॉइंट के अबाउट होगा जो रेस्ट में है, वो तो ये है। ठीक, अब आया ग्राउंड पर, अब बताइए एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया है, बिकॉज लेट गया ये ग्राउंड पर, पूरा लेटा हुआ है ग्राउंड पर, तो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक है प्योर रोटेशन, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कुछ। Because there was gravitational field, that is a conservative field under which it falls. So the gravitational field will not create any what you call as it will not create any change in total energy. Mechanical energy change तो होगा नहीं, इसलिए आप एनर्जी कंजर्वेशन से इसको कर सकते हैं। और मैं ओमेगा निकालूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, mg/L/2 is equal to 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। It is mg/L/2 is equal to 1/2. What is moment of inertia of the rod? And about which point you have to write down the moment of inertia? एक तो moment of inertia rod का क्या है, और किस point के about of moment of inertia determine करोगे? About the point of rotation, about the point of pure rotation, about that is this. This is the point of pure rotation. That is 1/3 ml square ओमेगा स्क्वायर। तो m तो ख़त्म हो गया m से, ये भी स्मॉल m ही है। l एक ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गया, तो क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो g के साथ और एक l नीचे लाओ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/l, ऐसे कुछ। तो ओमेगा किसके बराबर, रूट ऑफ 3g/l। तो ये जो ऐसे ये रॉड जो नीचे गिरा, ऐसे करके नीचे गिरा,
इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या था व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या था? अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये ओ है, इस पॉइंट का वेलोसिटी बताता हूं। वी ए इज इक्वल टू ओमेगा, जो यहां पर था ओमेगा वो निकाला, ठीक, ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये जो वी है अबाउट दिस कितना डिस्टेंस ये, दैट इज ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इज रूट ऑफ 3g बाय एल इंटू एल, वो हो गया रूट ऑफ 3g एल, बिकॉज ऊपर एल है नीचे रूट एल है, ये ऊपर रूट एल बचेगा तो रूट को यहाँ ले जाइए। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी? दैट इज ओमेगा। तो सबका इस ओमेगा तो सबका सेम है, सब पॉइंट्स का ओमेगा सेम है। सो दैट इज ओमेगा एल बाई टू। ओमेगा को वैल्यू दे दो, दैट इज रूट ऑफ 3g बाई एल इंटू एल बाई टू। वो क्या हुआ? वो हुआ 3g एल, ऊपर एल बचेगा, नीचे ये 2 को रूट के अंदर ले जाओ तो 4 हो जाएगा। एंड व्हाट इज वेलोसिटी हियर? 0, बिकॉज इट इज नॉट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहां 0 है क्योंकि इट इज नॉट अवे। अवे होता तो मैं वो मल्टीप्लाई करता वो फैक्टर, लेकिन वो उसी पॉइंट पर है। सो दैट इज वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ, तो उसी तरह से आप डिफाइन ही करते हैं, इट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो वेलोसिटी, इट इज एट रेस्ट। ओके, सो दीज वर फ्यू एग्जांपल्स ऑन रोटेशनल डायनेमिक्स। एंड चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, और यहां पार्टिकल है, इसका मास m है और डिस्क का मास m है, बताइए एंगुलर मोमेंटम कितना है? आई ओमेगा। लेकिन आई किसका? डिस्क का, अबाउट दिस एक्सिस। इसका तो मास भी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी और इस मास का भी, तो वो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज 1/2 mr², कैपिटल M r², प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मास पॉइंट है तो प्लस mr² इनटू ओमेगा। तो वो हो गया L इक्वल टू, यस, 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू r² ओमेगा। आंसर। अच्छा, अगर मैं एक और काम करूं, मैं इसका एंगुलर मोमेंटम अलग निकालूं और इसका अलग निकालूं, फिर ऐड करूं, देखता हूं। वो यहां देखो, फिर ऐड करूं, इसका एंगुलर मोमेंटम अलग और फिर इसका अलग, दोनों को ऐड करूं, क्योंकि दोनों का एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में है। इसका एंगुलर मोमेंटम वर्टिकल अप, इसका एंगुलर मोमेंटम भी, बिकॉज दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल लाइक दिस, तो इसका एंगुलर मोमेंटम की ऊपर की ओर है। तो जब ऊपर के ओर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मैं दोनों को अलग अलग करता हूं, देखता हूं अगर आपको समझ आता हो। विल यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, फिर से बनाता हूं। मास पॉइंट M R की दूरी पर है। चलो बताइए एंगुलर मोमेंटम, बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम डिस्क का, I ओमेगा ऑफ द डिस्क, इट इज I ओमेगा। बताइए इसका क्या एंगुलर मोमेंट? इसको वेलोसिटी V समझो, mv मोमेंटम इंटू R, क्योंकि ये मोमेंटम और R आपस में 90 है। यहाँ 90 लगता नहीं कि देखो, अगर ये डिस्क है तो पार्टिकल पेरिफेरी पर है तो उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल है, वो R के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? 90। पेरिफेरी पर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है और R के साथ वो 90 का एंगल बनाएगा, तो इसलिए इट विल बी mvr। सो L इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस M। व्हाट इज V? दैट इज R ओमेगा। ये वाला स्पीड, ये R ओमेगा के बराबर है। चलो, L इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस? I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, 1/2 mr² ओमेगा प्लस M, ये R में भूल गया, M r² ओमेगा। ठीक, तो फिर से वही आंसर आना चाहिए, 1/2 M ये वाला प्लस दिस M, मल्टीप्लाई करो क्या? r² ओमेगा।
ख़त्म खेल, पूरा ख़त्म हो गया ये। तो ये मैंने कंसंट्रेट किया ओनली रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, वरना आई कुड हैव गॉन टू द टॉर्क, आई कुड हैव मिक्सड द थिंग्स, बट आई वांट दैट लेट यू डू इट 2 times, and then tomorrow when we combine torque, when I explain you torque, and then I will connect the torque with the angular momentum, how it is related to angular momentum as a whole, maybe rotational angular momentum, maybe translational angular momentum, उसके साथ कैसे इसका रिलेशन है, तब सबको मिलाकर हम एग्जाम्पल्स देंगे। लेकिन आज जो है, आज का लेक्चर, आई कन्फाइंड माई सेल्फ ओनली टू द मोस्टली टू द रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, और फिर मैंने इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से के साथ भी रिलेट किया। थैंक यू एंड कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स।